Hello everyone, my name is Anupam Yadav and welcome to your math class. This is a class 5th maths. So we were already discussing about the factors and multiples. Okay, in previous class we already discussed about the factors and multiples. Now in today's class we are going to discuss about the properties of factor. Okay, so our topic is properties of factor. Then we will further discuss about the multiples. So before discussing the properties of factor, let us revise let us try to solve some questions which is based on the factors. Okay, so what is factor? सबसे पहले हमने देखा था कि factor क्या होता है. ठीक है, so let us take example. Find the factor of 15. If I will ask कि find the factor of 15, ठीक है, so what you will do, what is factor basically, what is factor? जैसे मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि all the numbers which can completely divide 15, those numbers are known as factor. As simple as that. बहुत सिंपल है. क्या होगा कि ऐसे नंबर जो 15 को completely divide कर दें और exactly divide कर दें. ठीक है, completely और exactly. What is the meaning of completely divide or exactly divide? It means remainder should be 0. It means remainder should be 0. Then if any division remainder will become 0, then that division is known as exactly division or complete division. If the remainder will left except one, like 1, 2, 3 or any other number, then we can say that it is not a completely divisible. So you have to write all the numbers, which can completely divide 15. Okay, so 1 will definitely divide 15. 1 15s are 15, so 1 divide 15, so 1 will be the factor of 15. Then what? 3 will also be the factor of 15 because 15 can be divisible by 3. Then after 5 is also 5, and then finally you will get 15. Okay, so these are the factors of 15. I hope it is clear to everyone. Now let us try to understand the properties of factor. और ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे. ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स होके देखो. नाउ वी विल टेक 2 एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर, देन विद द हेल्प ऑफ बोथ द एग्जाम्पल वी विल फाइंड आउट द सम प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर. ठीक है, सो लेट्स टेक फाइंड द फैक्टर ऑफ 6. आपको एक 6 का फैक्टर फाइंड करना है एंड ऑल्सो यू हैव टू फाइंड द फैक्टर ऑफ 9. ठीक है, 9 का फाइंड करना है. So what will be the factor of 6? Pause the video and try to write the factor of 6 on your copy. ठीक है, pause the video. So what is the factor of 6? That is 1, 2, 3 and 6. Okay, so what will be the factor of 9? Once again pause the video and try to write the factor of 9 with yourself. Okay, so what will be the factor of 9? That is 1, 3 and 9. अच्छा, let us take another example. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, like 20 ले लेते हैं. So what will be the factor of 20? That is 1, 2, 4, 5, then 10 and then finally 20. ठीक है, so I have taken 3 examples, 3 numbers, 6, 9 and 20. Okay, 3 numbers and I already write all the factors of 6, 9 and 20. Now look at this. इस चीज़ को ध्यान से देखो. There is something common in it. देखो क्या कॉमन है कि सर सबका फैक्टर एक चीज़ बहुत कॉमन आ रही है, दैट इज़ 1. इसका भी फैक्टर 1 है, इस नंबर का भी फैक्टर 1 है और इस नंबर का भी फैक्टर 1 है. क्लियर हो रही चीज़ें? या फिर आप कोई भी नंबर लिख लो. You can write any number, like आप 11 लिखोगे 11 and if you want to find the factor then 1 होगा and second one is 11. Only these are the 2 factors which only 11 has only 2 factor. 11 have only 2 factor, that is 1 and 11. और कोई नंबर 11 को नहीं डिवाइड कर सकता है, so यही 2 नंबर क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे. आप समझने की कोशिश करो कि एक चीज़ इन सब में कॉमन है, दैट इज सबका फैक्टर 1 ज़रूर हो रहा है. इसमें भी 1 फैक्टर है, इसका 20 का 9 में भी क्या है, 1 फैक्टर है. ठीक है, 6 में भी क्या है, 1 फैक्टर है. 11 में भी क्या है, 1 फैक्टर है.
समझ में आई? सो पहली प्रॉपर्टीज आपकी यहीं से निकलती है बच्चा. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि 1 विल बी द फैक्टर ऑफ ऑल द नॉन जीरो नंबर. ठीक है, 1 विल बी द फैक्टर, 1 विल बी द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स. 1 क्या होगा? फैक्टर होगा हर एक नंबर का. क्यों? बिकॉज 1 कैन डिवाइड ऑल द नंबर्स. 1 किसी को भी डिवाइड कर सकता है. सो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या आ गई कि 1 विल बी द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स. ठीक है, सो लेट अस राइट दैट इज 1 is the factor of all the numbers. ठीक है, numbers. आई होप कि ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी. हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर लिए हमने, बट उसमें एक चीज़ कॉमन आ रही थी, दैट इज 1 सबका फैक्टर हो रहा था. तो यहाँ से हमें पहली प्रॉपर्टी मिली, दैट इज कि 1 जो होगा वो हर एक नंबर का क्या होगा? फैक्टर होगा. एंड एज यू नो दैट कि 1 सारे नंबर को डिवाइड कर देता है और जो नंबर डिवाइड कर देता है वही उसका क्या हो जाता है? फैक्टर हो जाता है. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी. अब यहीं से आपको सेकेंड प्रॉपर्टी मिलेगी. क्या है सेकेंड प्रॉपर्टी? फिर से इसको ध्यान से देखो, एक और चीज़ आपको समझ में आएगा. क्या कि सर पहला तो ठीक है कि 1 जो है सबका फैक्टर होगा, लेकिन आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे हो कि अगर यहाँ पे 11 है सो 11 को भी डिवाइड करता है. यहाँ पे अगर 6 है सो यहाँ पे भी 6 आ रहा है. अगर यहाँ 9 है सो यहाँ भी 9 आ रहा है, और यहाँ 20 है सो यहाँ भी 20 आ रहा है. आई बात समझ में? पैटर्न समझ में आ रहा है? सो सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी यहीं से आती है कि नंबर इटसेल्फ इज ऑल्सो अ फैक्टर. इफ ऑल द नॉन जीरो नंबर, एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. ठीक है, ऑल द नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. सो ऑल द नॉन जीरो नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. देखो कि हर एक नंबर ना अपने खुद नंबर का एक फैक्टर है. जैसे 11 का फैक्टर भी क्या है? 11 है. 6 का फैक्टर क्या है? 6 है. 9 का फैक्टर क्या है? 9 है. एंड 20 का फैक्टर क्या है? 20 है. सो 2 प्रॉपर्टीज बहुत कॉमन है. एक क्या होगा कि 1 विल बी द फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स. एक जो 1 है वो सबका फैक्टर होगा, कोई भी आप नंबर ले लो. नाउ सेकेंड वन क्या होगा कि इफ द नंबर इज नॉन जीरो. अगर एक नंबर है जो कि नॉन जीरो है सो नंबर खुद का इटसेल्फ क्या होता है? अपने नंबर का फैक्टर होता है. ठीक है, सो इफ आई विल आस्क कि व्हाट विल बी द, टेल मी द 1 फैक्टर, टेल मी द 2 फैक्टर ऑफ 1001. 1001. Tell me the 2 factors. I am asking only 2 factors. So you can easily write, sir 1 होगा and 1001 होगा. क्लियर है चीज़ें? ठीक है, 1 होगा एंड 1001 होगा, बिकॉज आई एम आस्किंग ओनली 2 फैक्टर्स. फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं बट आई एम आस्किंग ओनली 2 फैक्टर्स. ठीक है, इफ आई विल आस्क कि व्हाट विल द फैक्टर ऑफ 2019. ठीक है, इफ आई विल आस्क कि व्हाट विल बी द फैक्टर, व्हाट विल बी द 2 फैक्टर्स, tell me only 2 factors of 2019. So you can easily write the 2 factor, that is 1 and the number itself. ठीक है, so I hope कि properties number 2 is also clear to you. Now move to the third property. Okay, so move to the third property, that is a factor of a non-zero number is less than or equal to a number. अब देखो यहाँ से थर्ड प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें यहीं से आएंगी बच्चा. ठीक है, सारी चीज़ें एक बार जो ऑब्जर्व करोगे ना तो सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी यहीं से आती हैं. अब एक चीज़ नोटिस करो कि जो फैक्टर आ रहे हैं हमारे ना, जो फैक्टर आ रहे हैं वो आइदर इस नंबर से छोटे होंगे, आइदर लेस देन होंगे और इज इक्वल टू होंगे. जितने भी फैक्टर होंगे, लाइक अगर 6 का फैक्टर हमने 1 2 3 6 लिखा है तो आइदर ये जो फैक्टर्स होंगे ना, जितने फैक्टर्स हमने लिखे हैं वो आइदर इट विल बी लेस देन 6 और इज इक्वल टू 6. आइदर वो 6 से छोटे होंगे और इज इक्वल टू 6 होंगे. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. दैट इज पहला फैक्टर 1 था. देखो 1 किससे छोटा है? 6 से छोटा है. 2 इज ऑल्सो लेस देन 6, 3 इज ऑल्सो लेस देन 6 एंड 6 इज इक्वल टू 6. ग्रेटर कभी नहीं आएगा. सो ऑलवेज रिमेंबर, any factor can't be greater than
itself, ठीक है, कोई भी फैक्टर अपने नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है, आइदर इट विल बी लेस देन इटसेल्फ और इज इक्वल टू इटसेल्फ, आइदर वो अपने नंबर के इज इक्वल टू होगा और लेस देन होगा। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल, लाइक यहाँ पे 9 का फैक्टर क्या था, 1, 3 एंड 9, सो 1 इज लेस देन 9, 3 इज लेस देन 9 एंड 9 इज इक्वल टू 9। ग्रेटर कोई नंबर नहीं आएगा, लाइक आपका 9 से ग्रेटर यहाँ पे कोई भी ग्रेटर नंबर नहीं आ सकता है, 11 नहीं आ सकता और 10 नहीं आ सकता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। सो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ 3, दिस इज अ थर्ड प्रॉपर्टी, ओके। नाउ मूव टू द फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी मूव करते हैं, आई थिंक सो मूव टू द फोर्थ प्रॉपर्टी। व्हाट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी? 1 इज द ओनली नंबर हैविंग वन फैक्टर नेमली इटसेल्फ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि 1 का सिर्फ और सिर्फ वन फैक्टर होगा, ठीक है, 1 इज द ओनली नंबर हैविंग वन फैक्टर दैट इज इटसेल्फ। सो 1 का फैक्टर क्या हो सकता है, 1 किससे डिवाइड हो सकता है, दैट इज ओनली बाई 1, और किसी नंबर से 1 डिवाइड हो ही नहीं सकता है, ठीक है, यू विल गेट अ रिमाइंडर और इट विल कन्वर्ट इनटू, इफ यू विल डिवाइड 1 by 2 देन इट विल कन्वर्ट इनटू अ डेसिमल फॉर्म दैट इज 0.5, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि 1 इज द ओनली नंबर हैविंग वन फैक्टर दैट इज इटसेल्फ, 1 खुद का ही सिर्फ फैक्टर होता है, इट मीन्स 1 के पास सिर्फ वन फैक्टर होता है और कोई नहीं होता है, ठीक है। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 4। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 5 इज एवरी नॉन जीरो नंबर अदर देन 1 एटलीस्ट 2 फैक्टर नेमली 1 एंड इटसेल्फ। देखो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट, मिनिमम, कम से कम, ठीक है। देखो अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या कहना चाह रहा है फिफ्थ प्रॉपर्टी इज सेइंग दैट कि एक्सेप्ट 1, अगर 1 को छोड़ दिया जाए, द नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, द नंबर्स विच इज ग्रेटर देन 1 शुड मिनिमम 2 फैक्टर्स, उनके पास कितना फैक्टर होना चाहिए, 2 फैक्टर्स होता है, ठीक है। लाइक लेट अस टेक एग्जांपल कि 1 से बड़ा क्या है, 2 है, सो 2 के मिनिमम फैक्टर कितने होंगे, 2 होंगे, दैट इज 1 एंड 2। 3 के फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड 3। 4, व्हाट विल द फैक्टर ऑफ 4, दैट इज 1, 2 and 4. So you can observe that from all these examples that if the number is greater than 1, अगर एक नंबर है जो कि 1 से बड़ा है, like 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 any number, then it should minimum 2 फैक्टर, उसके पास क्या होंगे, 2 फैक्टर तो होंगे ही होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं बट 2 फैक्टर तो मिनिमम होंगे ही होंगे। जैसे कि 2 का 2 मिनिमम फैक्टर है दैट इज़ 1 एंड वो नंबर इटसेल्फ, ठीक है। 3 के 2 फैक्टर हैं दैट इज़ 1 एंड इटसेल्फ, बट 4 के 3 फैक्टर हैं, 11 के 2 फैक्टर हैं, 6 के 4 फैक्टर हैं, 9 के कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं, एंड 20 के 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आ रहा है कि नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 हैव मिनिमम 2 फैक्टर्स, ठीक है, हैव मिनिमम 2 फैक्टर्स, के पास 2 फैक्टर्स तो होंगे ही होंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। आई होप इट इज़ ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। सो नाउ लास्ट प्रॉपर्टी इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0। वेरी गुड। देखो एवरी नॉन जीरो नंबर, if a number is non-zero like 1, 2, 3, 4, any number, a number, every non-zero number is a factor of 0, is a factor of 0, ठीक है। because देखो all the numbers, ठीक है, every number can divide 0, ठीक है, every number can divide 0, so 0 is a factor of all the numbers, okay, except non-zero. 0 can't be included because 0 by 0 will become infinite or indefinite, ठीक है। So I hope कि all the properties of factors are clear to each and every students, ठीक है। So these are the properties of factor. Please make sure कि pause the video and take some examples, जैसे कि मैंने examples दिया, आप भी वो 2-3 examples कीजिए and try to revise all the properties with the help of those examples, ठीक है। and with the help of those examples आप उन सारी properties को, जितनी भी total 6 properties हैं, try to write down all the properties, okay।
Okay, so let's move on. Now we are going to discuss about the properties of multiples. Okay, so we are going to discuss about the properties of multiples. So before discussing about the properties of multiples, let us try to once again remind the meaning of multiples. Multiple, its name suggests, that is multiply. ठीक है, if let us try to understand the meaning of multiple with the help of an example. Okay, so if I will ask you what will be the multiple of 2, okay, what will be the multiple of 2? ठीक, so multiple of 2 is 2, 4, 6, 8, 12 and it goes on. ये कभी ख़त्म नहीं होगा, it goes on. So what is the basic meaning of multiple? It means मल्टीपल का मतलब क्या होगा कि ऐसे नंबर जो उस 2 के टेबल में आते हो, दैट्स इट. बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो कि इफ़ आई विल आस्क कि व्हाट विल बी द मल्टीपल ऑफ 2, सो वी हैव टू राइट ऑल द नंबर्स जो कि 2 के टेबल में आते हो. इफ़ आई विल आस्क कि व्हाट विल बी द मल्टीपल ऑफ 3, सो यू हैव टू राइट 3 के, अब 3 में जितने भी टेबल नंबर आते हैं उनको सबको आपको लिख देना, लाइक 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12 एंड इट गोज़ ऑन. ठीक है, टेबल सिर्फ 10 तक नहीं होता है. ठीक है, टेबल 11 12 लाइक 33 ज़ा 3 10 ज़ा 30 एंड 3 11 ज़ा 33. ठीक है, एंड 3 12 ज़ा 36. तो ऐसे नंबर्स चलते जाते हैं टेबल्स, लेकिन हम सिर्फ कहाँ तक लर्न करते हैं? 10 तक लर्न करते हैं, मतलब 3 10 ज़ा तक लर्न करते हैं और 10 ज़ा तक लर्न करते हैं. 10s आर. ओके, सो आई होप कि मल्टीपल्स आपको क्लियर होंगे. मल्टीपल्स मीन्स मल्टीप्लाई. सो 2 4 6 8, so these are the multiples of 2. Now try to understand the first property is saying that every number is multiple of 1. एवरी नंबर कह रहा है कि हर एक नंबर, जितने भी नंबर होते हैं ना, वो किसके मल्टीपल होते हैं? 1 के मल्टीपल होते हैं. ऑफ कोर्स इफ़ आई विल आस्क यू, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 का मल्टीपल क्या होगा, ठीक है, 1 का मल्टीपल क्या होगा, सो आपको ऐसे नंबर्स लिखने हैं ना जो कि 1 के टेबल में आते हो. सो 1 के टेबल में तो हर एक नंबर आता है, लाइक 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4. सो ऑल द नंबर्स 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर्स, और ये चलते जाएंगे, ख़त्म नहीं होने वाले हैं. सो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि 1 क्या है? एवरी नंबर, जितने भी नंबर्स हैं, देखो जितने भी नंबर्स हैं इज अ मल्टीपल ऑफ 1. किसके मल्टीपल है? 1 के मल्टीपल है. ठीक है, नाउ मूव फर्दर. एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. ठीक है, याद रखो, हर एक नंबर बोल रहा है कि एवरी नंबर. देखो एक चीज़ कॉमन होगी कि अगर यहाँ पे 2 है, सो 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 2 इटसेल्फ, 3 इज मल्टीपल ऑफ 3, 1 इज मल्टीपल ऑफ 1. सो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि हर एक नंबर, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. हर एक नंबर खुद का ही मल्टीपल होता है. So every number is a multiple of itself. Now come to the third property, that is non-zero. Non-multiple is greater than or equal to itself. ध्यान देना यहाँ पे. अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि 2 का आगे हमने फैक्टर बोला था, सो 2 सबसे स्मॉलर नंबर था और बाकी जितने भी फैक्टर्स थे उसके 2 से क्या थे? ग्रेटर थे. यहाँ पे what is the factor of 3? What are the factor of 3? That is 3 6 9 12. So all the numbers are greater than or is equal to the number. ठीक है, either इस फैक्टर के, इस नंबर के वो इक्वल टू हैं और उससे क्या है? ग्रेटर है. ठीक है, so what will be the factor of what are the factor of 1? That is 1 2 3 4. So देखो all the numbers except 1, all the numbers, all the factors are greater than 1. ठीक है, except 1 and 1 is equal to 1. So a multiple can't be less than itself. ठीक है, a number can't be less than, कभी भी एक मल्टीपल जो है ना वो खुद के नंबर से छोटा नहीं हो सकता है. ठीक है, लाइक कि अगर ये 2 है तो 2 का मल्टीपल कभी भी यहाँ पे 1 नहीं हो सकता है. ये 2 है, 2 का मल्टीपल 1 नहीं हो सकता, बिकॉज ये क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा, और एज यू नो दैट कि 2 के टेबल में 1 नहीं आता है. ठीक, सो लेट्स मूव फर्दर कि as many as multiple we want. अच्छा, if I will ask you कि find the multiple of 1, ठीक है, if I will ask you कि find the multiple of 1, सो आपको क्या लिखना है? अगर मैंने आपसे पूछा है कि 1 का मल्टीपल बताओ, तो यू हैव टू राइट ऑल द नंबर्स विच केम इन द टेबल ऑफ 1. जो 1 के टेबल में आते हैं आपको वो सब नंबर लिखना है. तो 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं ना,
1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं. सो इट इज़ पॉसिबल टू काउंट ऑल द मल्टीपल्स. क्या आपके लिए पॉसिबल है कि सारे मल्टीपल्स को आप काउंट करो? नो. ठीक है. सिमिलरली 2 के भी मल्टीपल्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, 3 के भी. तो हर एक नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. एंड वी कैन ईजिली फाइंड एज मच एज मल्टीपल एज वी वांट. जितना हम मल्टीपल चाहें उतना हम फाइंड आउट कर सकते हैं. 1000, 100, किसी भी 2 का अगर मैं पूछूंगी फैक्टर व्हाट विल बी द मल्टीपल ऑफ 2, सो यू कैन से सर इनफाइनाइट मल्टीपल्स. हम जितना चाहें उतना मल्टीपल्स 2 का फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. सो एंड 0 इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर. ठीक है. 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर. 0 क्या होता है? हर एक नंबर का मल्टीपल होता है. ओके. सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल. सो वी ऑलरेडी डिस्कस about the factor, multiple, and then finally we are discussing right now that is properties of multiple, and we already discussed about the properties of factor. Okay. So one more topic is left, that is even number and odd number, and I think it is clear to everyone that is what is even number and what is odd number. Okay. What is even number and what is odd number is a very small topic. That is, देखो, what is even number? A number which completely divide by 2 is known as even number. Okay. All the numbers which can completely, what is the meaning of completely divisible? It means the remainder should be 0. In such a division we can say that it is a complete divisible. ठीक है. So what is even number? All the numbers which can completely divide by 2 is known as even number. सारे ऐसे नंबर जो 2 से completely डिवाइड हो जाते हैं, these numbers are known as even number. Okay. So 2 is a even number? Yes sir, 2 is a even number because 2 can be divided by 2. 4 is a even number? Yes sir, 4 is also a even number. 5 is even number? Yes sir, 5 is also a not an even number. ठीक है. So 5 is not a even number because 5 can't be divided by 2. You will get a remainder, that is 1. Let us check out. That is 2. If we will divide 5, then 2 2s are 4. You will get 1 as a remainder. Okay. So if the remainder will left, ठीक है, so it is not completely divisible. So in this case it is not a even number. So next even number is 6 because 6 can be completely divided by 2. So all the numbers which can completely divide 2, ठीक है, by 2, then these numbers are known as even number. And odd number is just reverse. All that number which can't be divided by 2, if the remainder will left after division, then these numbers are known as odd number. Let's take an example like 3. 3 can't be divided by 2. ठीक है. 3 2 से डिवाइड नहीं हो जाएगा. You will get 1 remainder. So it will become a odd number. ठीक है. And these are the even numbers. ठीक. So it will become a odd number like 5, 7, 9. So these numbers are known as odd numbers. But the problem is that these numbers are very small. You can easily check out either it is divisible by 2 or not divisible by 2. But in the case of what you will do in the case of larger number, if the larger number is there, then how you can find either it is even number or odd number. Okay. So let us try to understand. ठीक है. अगर कोई एक नंबर है, अगर वो इवन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो ऑड हो जाएगा अपने आप. ठीक. सो सिर्फ हमें इवन फाइंड आउट करना है. ठीक. सो लेट अस राइट सम लार्जर नंबर लाइक इफ आई विल राइट 2019 एंड आई विल राइट 2020. ठीक है. So in case of even number, if I will ask you कि which one is even and which one is odd number, so only you have to find either it is even or not. ठीक है. अगर आप even पता कर लेते हो तो easily वो क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा. ठीक. देखो, so आपको हमेशा क्या करना है, you have to only check the number which is at unit place. ठीक है. यूनिट प्लेस पे जो नंबर है ना सिर्फ उस पर फोकस करना है. ठीक है. यूनिट प्लेस पे जो नंबर है सिर्फ उस पर फोकस करना है. इफ अगर यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, इफ यूनिट प्लेस पे अगर आपका नंबर क्या क्या है, 0 है, 2 है एंड 4, 6, 8. ठीक है. सो इफ अगर यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स हैं 0,
2 4 6 8 अगर ये नंबर्स हैं यूनिट प्लेस पे, सो देन इट विल कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2. देन ऑल द नंबर्स, अगर यूनिट प्लेस पे ये कोई भी इनमें से कोई भी एक नंबर है, सो वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, एंड इफ दैट नंबर इज कंप्लीटली डिवाइड बाय 2, देन यू कैन से इट इज अ इवन नंबर. नाउ लेट अस चेक आउट कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 9 है. सो 9 यहाँ पे नहीं आता है, सो इट विल नॉट डिवाइड बाय 2, सो इट विल बिकम अ ऑड नंबर. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 0. यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है. ओके, इफ 0 विल देयर, देन डेफिनेटली ऑल द नंबर, दिस होल नंबर विल डिवाइड बाय 2 से डिवाइड हो जाएगा, सो इट विल बिकम अ इवन नंबर. कितना इजी है ना. सो ओनली यू हैव टू चेक इट्स यूनिट प्लेस. ठीक है, एनी नंबर इफ द यूनिट प्लेस इज 0 और 2 और 4 और 6 और 8, then whole number can completely divide by 2 and it will become a even number. Let's take another example like 1 2 4682. So what? So firstly, if I will ask you either it is odd or even number, so आप क्या करोगे, अरे सर ने तो ये बताया था कि सबसे पहले हमें यूनिट प्लेस को चेक करना है. ठीक है, कहाँ चेक करना है, यूनिट प्लेस पे. अगर यूनिट प्लेस पे इनमें से कोई भी नंबर है, सो वो क्या हो जाएगा, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा. ओके, सो देखते हैं 2 यहाँ पे यूनिट प्लेस पे है, 2 यहाँ पे, अरे वाह 2 तो यहाँ पे है. ठीक है, सो इट मीन्स ये जो होल नंबर है, जो पूरा नंबर है 4682, ये कंप्लीटली किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा. एंड इफ अ नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, देन दिस नंबर इज नोन एज इवन नंबर. ओके ओके, चलो अभी चेंज कर देते हैं इस नंबर को. ठीक है, इफ आई विल चेंज दैट नंबर. ठीक है, अभी 4681 कर देते हैं. ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है. देख चेक करो, लेट अस चेक आउट कि अरे यहाँ पे तो 1 है ही नहीं. इट मीन्स अगर यहाँ पे 1 नहीं है तो ये पूरा होल नंबर जो है इट विल नॉट डिवाइड 2, इट विल बी नॉट डिविजिबल बाई 2. अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, सो इट विल बिकम अ ऑड नंबर. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स. So please make sure and go through the questions on the basis of this topic. I hope it is clear to each and every students. Thank you and have a nice day.